Hello, sir. Champ, how are How are you? you doing? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly, exactly. So, before we start, आपने देखा बचपन में जब वो Mm-hmm. मम्मियाँ नहा धो के तैयार करती थी, बाल एक तरफ और सिर्फ, और चलो जाओ तेल लगाकर। तो आज मैं तैयार हो रहा था, मेरी बीवी कहती खड़ी हो, मैं खड़ा। तो इसलिए ऐसा है. A lot of people ask me what's the reason of my hairstyle. This is the reason. Ah, so sweet. So sweet. वो How दिन is it मुझे भी going? याद है. Uh, Very good. Very good. All well. Just finished training. Just in time. आपने टाइम दिया हुआ था. मैंने कहा लेट नहीं करना. स्किपर को लेट नहीं कर सकते. बस पहुंच गए अभी. Just finished training. Just doing a little bit every day. You know how it is. You can relax, but you can never really, go out of shape or off the path that you're on. So yeah, I I'm know sure. that you I'm do sure. it as well. We both try and keep up to it because eventually we have to get back to responsibility and just guiding our visions for our respective environments. So yeah, it's fun. It's fun. Exactly. And how is the family in Family is Mumbai good. and in Delhi? Yeah. Yes, all good. Anushka is very well. Family in Delhi is also fine. They're all healthy and safe. Obviously, situation is a bit more tricky here, but yeah, we are safe. We are indoors. No real interaction with anyone outside. ठीक है, अच्छा चल Okay. रहा है. So far so good. Bangalore, Good to hear Bangalore's that. fine. It is. It is. We are actually in the green zone, but I think government ने Hmm. advice दिया है कि बाहर ना निकले. So we're trying to stay at home. We're still waiting Hmm. for everything to be Hmm. fine and then only go out. Okay, Yeah. that's nice. So, That's nice. so ये जो series है, champ, I bring 10 questions and I try my best Yeah. to not be हाँ. repetitive. बट Okay. मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ. इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं. तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए. हाँ. एंड बिफोर आई हाँ. स्टार्ट, मैंने आपका Hmm. एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा हाँ. कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी, हाँ. थोड़ा नाराज होते हुए. तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं. तो अगर नाराजगी आई, मैं नाम भेज दूं जो जो लगे हुए थे आपको तो सवाल मैं बनाने में. आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना. आपको तो मैसेज भी कर इसलिए, सकता हूँ. वो लोग तो पूछ के भाग लेकिन मैं जाते हैं उनका ना नाम भी, इसलिए. नहीं, मैं उनको नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये. हाँ. अगर आपको लगे कि क्या है हाँ, ठीक और है. ऐसी मुंह उठा के ठीक है. आगे ठीक सवाल है. पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा. ठीक है. ठीक है. डन डन चलिए डन डन. चैम, लेट्स स्टार्ट. ओके. So ओके. the first thing that I want to ask you, Virat, is the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household. And I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. या pretty similar. आई गेस माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द Hmm, स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो hmm, वो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, आई व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, hmm, hmm. तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. तो अच्छा. दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार इफ यू कीप गोइंग अप, Hmm, you will obviously make a career out of this at some stage because you are hmm, totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके hmm, बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं, hmm, but मुझे ऐसा कभी doubt नहीं हुआ कि
अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, क्लैरिटी थी कि यही करना है, एंड आई वेंट अहेड विद इट। फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 आई when I ended up playing under 19 India, that's when I thought ki, you know, okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to England. तो वो जो टूर फी मिला, उसके बाद माय फादर ओपनड अ अकाउंट फॉर मी, जाके जॉइंट अकाउंट खुलवाया। तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल। You know, I can really make this into my career, and you know, it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. You know, whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए, हाँ जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ। तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मैं बसों अच्छा। में जाता था, पास अकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए, साइकिल भी थी मेरी, साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, मडगाड़। हाँ, कैरियर 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 में कैरियर। किड बैग ठूस के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी। बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था, ही हैड अ चेंबर। सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी। वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था। डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे। हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या है, स्टाफ है। वो किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया। वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया। नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते फिर। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ। तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ। तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी, चहल यहाँ भी आ गए। हेलो भैया फ्रॉम होम। ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है। कोई बात कर रहा हो बीच में, इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसलिए घर नहीं आना वापस। ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके। अरे मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज़ आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी। छबील मतलब छबील मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है, और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। ठीक है, सबको रोड पे पिलाते हैं। हाँ, छोले पूड़ी हलवा वाला होता है, और रोड पे मिल रहा होता है। तो बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी। अब मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते उसने 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे, वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं।
क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर, ये बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी हम्म चेंज की, मुनीरका पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते थे। था। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, Hmm. and only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I wanted to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब रिजल्ट्स ऑब्वियसली आने शुरू हुए, and you know under 19 tours happened, and then he saw कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, यू नो, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीजें होती है, यू नो, मेनी फैक्टर्स Hmm. Hmm. हैपन वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट Hmm. पुट इट लाइक दैट, आई वुडंट गो इलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे obviously a certain someone um, chose to, you know, step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही Hmm. अंडरस्टूड, Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट True. True. अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां True. कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें Hmm. नहीं खिलाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया बहुत रोया, मैं, यू नो, आई वाज ब्रोकन, बट Hmm. दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर Hmm. आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that Hmm. lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a, you know, life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत True. आसान होता है। So True. those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी Hmm. चाहिए, you know, that is fair, but to have the courage to say nahi, acha isko karne do for a while, Hmm. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So, champ, I'm sure you miss him almost every day in your life. But was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see Hmm. what he was trying to build. Was Hmm. there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, no, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of, True. I was 18, and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि, you know, क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you know you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, Hmm. when things started, Hmm. you know, going well, I started thinking, yeah, ki, what is it really that I could have done which meant something? And the Hmm. only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki, you know, whatever my father did for our family, for me, for, you know, all the brothers and sisters, children, for my Hmm. mother, everything for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him
was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in a emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहाँ आप अपना फोकस खो सकते हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल. So विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता था कि हर दिन क्यों बोलता है ये यार. वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट टॉनिक सिनकारा पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी ठंडी. क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के. अरे वो वक्त ही अलग था. कमाल. तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज होती जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, I speak the same language I spoke to them in that time, and that to me is the biggest marker that you are never away from who you are. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता उससे. नो, मुझे पता है. हाँ, मुझे पता है. I don't suddenly become posh with him because to me living life खुल के is the only way to live. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है. Where you are in a place to talk about something which is serious, it means something. Obviously you won't talk like अबे भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have you'll be more articulate, you'll explain it well, but जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ. अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है